Bismillahirrahmanirrahim. And today we are going to start chapter number 1, and in this video we are going to solve exercise 1.21 of real numbers, right? So before starting it, please repeat after me. Rabbi Shohli, Sodri, Vayasirli, Amri, Wahlul, Uqdatam, min lisani, Yafqahu, Qawli. Rabbi zidni ilma. So it's actually a dua before studying. So I always say to my students कि अगर आपको if you are facing any difficulty in any of your subject or in any topic, so just recite this dua, a very short one. It will take like 30 seconds, right? 20 to 30 seconds. So just recite it and believe me, trust me, आपको वो बहुत अच्छे से याद होगा, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हो. So it's actually a kind of spiritual message, so just take it and follow it. So the real numbers, what do you know about the real numbers? We have studied a lot of numbers, right? A different types of the numbers, like even numbers, odd numbers, prime numbers, right? And the real numbers is basically a combination of rational and irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers. If we take the union of these two numbers, the rational and the irrational numbers, we get the real numbers. And rational numbers कौन से होते हैं? ऐसे numbers जिनको हम P over Q की form में लिख सकते हैं. P and Q could be any positive or negative integer, and Q must not be equal to 0. So like for example 3 over 5, 0.6. 0.6 we can write it like this, 6 over 10, and then further it becomes 3 over 5, right? If we cancel out the numerator and denominator by 2. So rational numbers are those numbers which can be written in the form of the P over Q, right? And the irrational numbers are mostly in the form of the square root, or under the square root आपके पास कोई number होता है which is not perfect square और जो कि mostly prime होता है, like for example under root 3, under root 5, under root 7, and if and mostly the non-terminating decimals, ठीक है? So these all are the irrational numbers, right? If we combine both these numbers, the rational and the irrational numbers, so we find out the real numbers. And we denote the real numbers on real number line, like we draw it like this, a line, और both ends पे उसके arrow होते हैं, which shows कि it never ends from the right side, from either from the right side or from the left side, ठीक है? Never ends. और mid में आपके पास यहाँ पे start हो रहा होता है 0, right? और on the right side all are the positive numbers, 1, 2, 3 and so on, and left side पे आपके पास सारे के सारे negative numbers होते हैं, -1, -2 and -3, right? Now see, between 1 and 2 there are the 10 line difference, right? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10th one is this line, okay? This one. We'll read it like this. This one is 1, right? And this will become 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, and your 10th line will be your 2, right? So 1 और 2 के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास ये 10 स्मॉल लाइंस का डिफरेंस आ रहा है. इट जस्ट लुक लाइक योर रूलर और स्केल, ठीक है? दिस इज नंबर लाइन. नाउ this, if I consider this 1.5, this is 1.5. May I write it like this, 15 over 10? And further, if I cancellate it with 5, then it will become 3 over 2. So this number is actually a rational number, right? Does it look like a rational number? Yes, it is. And similarly, there are irrational numbers also lie in this real number line, okay? So let's see the exercise 1.1, in which the first question says, identify each of the following as a rational or irrational number. We need, the numbers are given, different numbers are given, and we just need to identify which one is rational or which one is irrational. राइट. सो द रैशनल नंबर्स यू नो कि उसको हम लोग एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो कि जिनको हम जब डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट के बाद मतलब कहीं पे जाके स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है? बट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, और लाइक विद डिफरेंट नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और वो रुकते नहीं है. वी डोंट नो कि वो कहाँ पे उसका आंसर एंड हो रहा होगा, ठीक है? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द फर्स्ट वन विच इज 2.353535, और उसके बाद खत्म. मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो एंड हो रहा है, और लाइक अगर वो कंटिन्यू भी हो रहा होगा तो वो 3535, वी नो कि वो 3535 ही आंसर आएगा, वी नो द आंसर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैशनल. ओके, 0.6 की हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी, इट्स अ रैशनल. नाउ इट इज 2, 3
आफ्टर पॉइंट आप चेक करो, यहाँ पे आ रहा है 2 3 6 0 6 7 और आगे आपके पास सो वन आ रहा है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। √7, अगर आप √7 लोगे तो वो एंड नहीं होगा उसका आंसर, ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स एन इरेशनल। ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल, इसकी एक स्पेसिफिक आपके पास वैल्यू होती है, एंड दिस इज ऑल्सो इरेशनल, पाई इज ऑल्सो इरेशनल। और अगर हम किसी भी इरेशनल, वी नो द के स्क्वायर रूट के आपके पास अंडर स्क्वायर रूट देयर इज अ प्राइम नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक कि अगर भी किसी भी आप इरेशनल दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास इरेशनल आएगा, किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी एक सिंपल नंबर में ऐड करोगे तब भी आपका आंसर इरेशनल आएगा, ठीक है। 15/4 इन द फॉर्म ऑफ द p over q, so that's why it is a rational number. Again, √2 we know that it is a irrational number, but if we multiply these two numbers, like for example, let's solve it, okay. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में यही होगा कि आंसर आपका इरेशनल आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आंसर आपके पास ना डिफरेंट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, this is 2 minus under root 2 and 2 plus under root 2, right? So this, consider it is A and this one is your B. This one is A and this one is your B with opposite sign. So it becomes a formula which is A square minus B square, right? And I can write it like this, 2 square minus under root 2 का whole square, right? And what it will become, 2 square equals 4 minus square root से cancel हो जाएगा and it will be just 2 will left, and 4 minus 2 equals 2, and 2 is a real number or irrational number, or rational number, right? 2/1, right? So that's why it's a rational number, okay? So इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। Now let's see question number 2, which says कि represent the following numbers on number line. नंबर लाइन हमें पता है कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और आपके पास जो भी गिवन नंबर होगा आपने उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सबसे पहले √2 को आप एग्जैक्टली नहीं देख सकते हो कि वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो आपने सबसे पहले उसको सोल्व करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, √2 1.4 के इक्वल होता है, नाउ वी नो कि वेयर इज द 1.4, ठीक है, तो जस्ट आपने उसको सोल्व कर देना है वहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक दिस क्वेश्चन लाइक 4 होल 1/3, सो हाउ विल वी सॉल्व इट? लेट्स सॉल्व इट। लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव अ क्वेश्चन 4 होल 1/3, ओके। सो पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि ये कहाँ पे नंबर लाइन पे लाई कर है। सो अगर हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13/3, राइट। अब 13/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद बस एक डिजिट आप देख लो, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 4.3, राइट। अब आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, आपको पता है कि आपने 4 के बाद 3 लाइन्स पे जाना है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स होती हैं, 9 और ये 10 का डिफरेंस होता है, तो आपका आंसर क्या आ रहा था, 4.3। तो 4 के बाद ये 4.1 है आपके पास, 4.2 एंड दिस वन इज योर 4.3, राइट। और अब आपने यहाँ पे 4.3 नहीं लिखना, जो एक्चुअल में आपके पास क्वेश्चन गिवन था विच इज 4 होल 1/3, यू राइट 4 होल 1/3 ओवर हियर एंड दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, इजी, राइट। सो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, सी, ओके। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने अभी ये किया है क्वेश्चन 4 होल 1/3, आप इसको सोल्व करेंगे, और ये नेगेटिव साइन है इसके साथ, इट मीन्स कि आप नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे जहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट। तो आपने इसका ध्यान रखना है नेगेटिव और पॉजिटिव का। 5/8, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8 विच इक्वल 0.6, इट मीन जीरो के बाद आप 6 लाइन तक जाओगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 0.6। सो यहाँ पे इसको मार्क करके और यहाँ पे 5/8 लिख देना आपने, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे या फिर आपके पास नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करोगे, और अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आप राइट साइड पे मूव करोगे, ओके। And the sixth question is 2 whole 3/4, which equals 11/4, and 11/4 equals 2.7. And 2.7 is a positive number, right? So we'll move on the right side of the number line, and 2.7. So 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, and 2.7 is over here. And just write 2 whole 3/4 over here, and that's it. Your question is solved. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स नॉन जीरो। आपके पास नंबर गिवन होगा, लाइक
क्वेश्चन नंबर 2 में 0.37 और ऊपर बार का मतलब है कि दिस नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ कंटिन्यूसली, ठीक है, टिल एंड। और क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट 0.4 और 4 के ऊपर बार गिवन है आपके पास। इट मीन्स कि जो 4 है ये अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड वी डोंट नो कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, बट वी जस्ट नो कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। अब उन्होंने हमें कहा है कि जो गिवन नंबर है ना, इसको आपने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, और जो क्यू है ना वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू शुड बी नॉन जीरो। सो इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा, ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0.4 और ये बार है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो 4 है, फोर इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको ना आप एक्स के इक्वल सपोज कर लो, ठीक है, और 4 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो आप इसको 4 को लिख लो, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ सी कि आपके पास 0.4 को आप अगर हमने फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो, इस पॉइंट को रिमूव करके 1, और आफ्टर पॉइंट आपके पास 1 डिजिट है तो यहाँ पे आप 0 लगा देते हो। पॉइंट के बाद जितने भी आपके पास डिजिट होते हैं उतने डिनोमिनेटर में 0 आते हैं, राइट। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 4/10, राइट। तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, जो फर्स्ट स्टेप में आपने जब एक्सपोज किया है ना, अब आपने क्या करना है कि राइट हैंड और लेफ्ट साइड बोथ को ना आपने जो डिनोमिनेटर में 10 आया ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड सो ऑन, ओके। जब आप 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10x, और जब 10 को आप 0.44 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट, ये मतलब जो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 4.44444 एंड सो ऑन। जो फर्स्ट स्टेप था उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना, ओके। एंड सेकंड जो आपने आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो आपके पास इक्वेशन आई है, से इट इक्वेशन 2, ओके, ए बी 1 2 वट एवर यू वांट टू से। अब आप क्या करोगे, जो आपके पास इक्वेशन 2 आई है उसमें से आप जो इक्वेशन 1 है आपके पास उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, ओके। तो 10x में से आप जब x को माइनस करोगे और 4.44 सो ऑन में से आप 0.444 सो ऑन को माइनस कर दोगे, ओके। सो यूल गेट 10x माइनस x इक्वल्स 9x इक्वल्स, अब आप देखो जो पॉइंट के बाद इसके डिजिट्स हैं वो सारे सिमिलर है, राइट, और इसके भी, इसका भी पार्ट सिमिलर है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 माइनस 0 आपके पास क्या आएगा, जस्ट 4, ओके। सो अब आपके पास क्या बन गया, ये 9x इक्वल्स 4। अब आप क्या करोगे कि जो 9 है इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे, इट विल डिवाइड, और 4/9, और ये अब आपके पास p ओवर q की फॉर्म आ गई है ना, और q आपके पास नॉन जीरो भी नॉन जीरो है, सो इट्स सॉल्व। बस आपसे यही पूछा हुआ था ना क्वेश्चन में, उन्होंने यही कहा था कि आपने जो गिवन नंबर होगा उसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना है, सो p ओवर q की फॉर्म में आ गया 4/9, इट्स अ रैशनल नंबर, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको आपने x के इक्वल सपोज करके उसको किसी भी एक इक्वेशन का नाम दे देना है, ठीक है, जो एक दे दो या 1 कह लो, इट्स टोटली अप टू यू। फिर आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि 0.37 है अगर यहाँ पे, तो अगर हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 एंड आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे अब कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको हम बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन बी का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद जो 2 होगा 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे। जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट डेसिमल का जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट वो रह जाएगा, और बाकी वाला जो होगा वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 100x माइनस एक्स इज 99x इक्वल्स 37। 99 को अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, इट विल डिवाइड, सो योर आंसर विल बी 37/99 इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। इजी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 0.21। इसमें 21 के ऊपर बार है, इट मीन्स कि जो 21 है दैट नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ओके। अगर आप इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आएगा, तो पहले आपने इसको x की इक्वल सपोज करना है, फिर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बोथ इक्वेशंस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, ओके। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो यू मे आस्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आपने थ्योरी में पढ़ी होगी। उसमें आपने इस क्वेश्चन में जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने जस्ट नेम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, ओके। अब लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में क्या है, a + 4
के पास ब्रैकेट है प्लस बी इक्वल्स, अब ये वाली जो ब्रैकेट है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके पास साइन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन का, सो विल राइट इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट्स इट, ओके। अब आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस का है। तो अगर हम एक्स में हम किसको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इफ वी ऐड minus x so we'll get 0. So this is called the additive inverse. Simply if I say कि अगर आप x के अंदर x से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाए, सो 1/x, राइट। 1/x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। 1/x इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओवर हेयर, और अगर हम एडिशन में बात करें तो दिस बिकम्स एडिटिव इनवर्स विद ऑपोजिट साइन, ओके। एंड सिमिलरली 16 प्लस 0 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम 16 में 0 को ऐड करें तो 16 की आइडेंटिटी सेम रहती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 16 में मैं 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो 16 ही रहे, 1, राइट। तो 16 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वो 16 रहेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको आपने याद रखना है। नाउ लेट्स सी दिस वन, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 एंड जो लास्ट वाले टू नंबर्स हैं उनके ऊपर ब्रैकेट है, ठीक है। और इक्वल्स टू, अब क्या हुआ है कि अब जो ब्रैकेट है वो शिफ्ट हो गई है फर्स्ट टू नंबर्स में, तो बस ब्रैकेट्स का शिफ्ट हुआ है, पहले वो पहले टू नंबर्स में था, बाद में बाद वाले टू नंबर पे आ गया, सो दिस इज एक्चुअली द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट आप साइन चेक करो, मल्टीप्लाई किया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन, वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होता है कि इफ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ द टू नंबर्स और उसको हम ऐड कर रहे हो बट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से 2 + 3 = 3 + 2, अगर मैं 2 + 3 करूं तब भी आंसर 5 आएगा, 3 + 2 करूं तब भी आंसर 5 आएगा। वी आर जस्ट हम लोग जो पोजीशन है नंबर्स की वो चेंज कर रहे हैं बट आंसर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपके पास ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन का, सो विल राइट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज हो रहा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 3 × 2 करूँ या फिर 2 × 3 करूँ, आंसर तो 6 ही आएगा, राइट। सो आपने यहाँ पे बस चेंज कर देना विद रिस्पेक्ट टू उसको मल्टीप्लिकेशन लिख देना, दैट्स इट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस नंबर a इंटू बी प्लस सी, ओके। अब जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फर्स्ट वाले नंबर से भी हो रहा है और सेकंड वाले नंबर से भी हो रहा है, के पास भी जा रहा है, ठीक है। ए बी ए सी, और जो भी आपके पास ऑपरेशन है वो यहाँ पे आ रहा है, so दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको लेफ्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेफ्ट साइड से। अगर आपके पास जो a है वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इफ आई राइट इट लाइक दिस, b + c इंटू ए, ठीक है। अब ए आपके पास राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल कॉल इट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, हम लोगों ने 16 के साथ ये एग्जांपल की थी। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 100 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो 100 ही रह रहा है। और ए बी इक्वल्स बी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सो ये एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो यू मे आस्क। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें एक नंबर, दो नंबर्स दिए हमें, एंड बोथ आर रैशनल नंबर्स, सी 1/3 एंड 1/4, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बिटवीन आपने दो और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, लाइक वी हैव 1/3 एंड 1/4, लेट्स सॉल्व इट। The question is about 1/3 and 1/4. These are the two rational numbers which are given. What we have to do is कि हमने इन दोनों numbers के between दो और rational numbers find out करने हैं, ठीक है। उसका क्या criteria होता है, then सबसे पहले हम लोग first rational number find करते हैं। फर्स्ट के लिए क्या करोगे आप, जो आपके पास गिवन है ना रैशनल नंबर्स, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ओके, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, बिकॉज टू रैशनल नंबर्स आर गिवन, सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2, जस्ट लाइक द वे वी टेक द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स, वही वाला फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। आपके पास आपने क्या करना है, जो भी नंबर गिवन होंगे, जो भी दो रैशनल नंबर्स गिवन है उन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ वी टेक इट एलसीएम तो आपके पास 12 आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर विल बिकम 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2,
एंड 4 + 3 7 ओवर 2 डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम 1/2 और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/24 और 7/24 को हम फर्दर कुछ भी इसका सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कैंसलेट भी नहीं कर सकते। सो इट मीन्स कि इन दोनों के बिटवीन 1/3 और 1/4 के बिटवीन जो आपके पास रेशनल नंबर है वो क्या है 7/24, राइट। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया। उन्होंने हमें कहा था कि दो रेशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट से राइट आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास आप कंसीडर करो कि यू हैव दीज टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आप इनका फाइंड करो जस्ट लाइक यू फाइंड फॉर द फर्स्ट रैशनल नंबर। अब आप सेकंड रैशनल नंबर के लिए फाइंड करोगे, आप क्या करोगे कंसीडर योर फर्स्ट एंड दिस वन इज योर सेकंड, ठीक है। तो 1/3 आप इन दो रैशनल नंबर्स को प्लस करोगे और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ओके। 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 2, ओके। जब आप 24 और 3 का एलसीएम लोगे यू विल गेट 24 एंड न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। 8 + 7 = 15, 15/24 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 15/48, ओके। एक आपके पास आ गया रेशनल नंबर 7/24 विच वाज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। सो आप क्या करोगे, इसको अब इन दोनों के बिटवीन इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। सो अब आपके पास क्या रेशनल नंबर बचेगा 1/3 और उसके बाद आपके पास क्या है 15/48, देन दिस वन 7/24 एंड इट लास्ट 1/4। दीज आर द 4 रेशनल नंबर्स, ठीक है। आपके पास these two were given और ये दोनों आपने फाइंड किए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। होप यू गेट इट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। 3 एंड 4 है आपके पास गिवन, ओके। 3 एंड 4, अब आपने 3 एंड 4 के बिटवीन दो और रेशनल नंबर्स बताने। अगर आप कहोगे कि 3 और 4 कैसे रेशनल नंबर हो गया, ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो बेटे 3 अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, वी कैन राइट 3 एज अ 3/1, ठीक है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो वेल फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप कि आपने 3 और 4 को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। दैट्स हाउ इट इज रिटन ओवर हियर। 3 + 4 = 7, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 एंड इट विल बिकम 7/2, ठीक है। अब आपके पास रैशनल नंबर क्या हो गया 3, 7/2 एंड 4। 3 और 4 ऑलरेडी गिवन था और 7 और 2 हमने फाइंड किया कि इन दोनों के बिटवीन में 7/2 लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, आपका क्या होगा सेकंड स्टेप में आपने इन दोनों रैशनल नंबर्स को कंसीडर करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, राइट। सो इट विल बिकम 13/4। अब आपके पास फाइनल रैशनल नंबर्स कैसे आ जाएंगे 3 और दिस वन इज योर सेकंड 13/4 एंड ये वाले 7/2 एंड 4। दिस इज हाउ यू विल राइट योर फाइनल आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस। I'll say कि you should try this one, okay? और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई you may ask, तो अब आप इसको ट्राई करो और अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है you are free to ask any question, okay? So this was your exercise 1.1। इसकी प्रैक्टिस करो और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ask the questions